Good afternoon, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. Friends, today we are going to complete practice set number 28. So, let's start. The very first question of this set is before you. First question is Antonio offers to return half of Shylock's estate on the condition Shylock. एंटोनियो ने क्या कंडीशन रखा कि जब वो कंडीशन शार्लॉक पूरी करेगा तो उसका जो स्टेट है उसका आधा उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या था? ए अपोलॉइज, बी डुएल्स विथ हिम, सी गिव्स हिम ए लोन एंड डी कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। तो कंडीशन जो था वो कंडीशन ये था कि जब शार्लॉक क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेगा तब जो है एंटोनियो उसके स्टेट का हाफ जो पार्ट है उसको रिटर्न कर देगा। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए सॉन्ग और हिम ऑफ ग्रीफ और लैमेंटेशन स्पेशली ऑन इंटेंटेड टू accompany funeral or memorial rites. A dirge, B ballad, C lyric and D eulogy. Correct answer will be option number A dirge. What is dirge? It is a brief hymn or song of lamentation and grief. It was typically composed to be performed at a funeral. Next question, question number 3. A comic verse composed in irregular rhythm. A tragedy, B doggerel, C comedy and D farce. Correct answer will be option number B doggerel. Doggerel क्या होता है? Doggerel, it's a style of writing that uses irregular rhyme and rhythm, often for comic or burlesque effect. Next question, question number 4. A short pastoral poem, usually in dialogue, on the subject of rural life and the society of Shepherd, depicting rural life as free from the complexity and corruption of more civilized life. A comic relief, B elegy, C interlude and D eclogue. Correct answer will be option number D eclogue. It's a short pastoral poem usually in dialogue on the subject of rural life and society of Shepherd. Question number 5. The omission of a sound or syllable when speaking. A omission, B elision and C silent pitch and D intonation. Correct answer will be option number B elision. इसे क्या बोलते हैं? जब कोई वर्ड हम लिखते हैं उसमें से कोई एक वर्ड या लेटर या साउंड को हम ओमिट कर देते हैं या उसको हम हटा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इलिजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आई एम को कैसे लिखा गया है और लेट्स को कैसे लिखा गया है। तो इस तरह से जो आपका जो वर्ड होता है, जो यहाँ पे हम किसी भी लेटर को यहाँ से ओमिट कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलिजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग ए टेक्स्ट और ए चेंज मेड टू करेक्ट और इम्प्रूव अ टेक्स्ट. A emanation, B repression and C ellipsis and D emendation. जब किसी टेक्स्ट को हम करेक्ट करते हैं या कुछ उसमें चेंज करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इमेंडेशन।
Next question, question number 7. An inscription on or at a tomb or a grave in memory of one buried there. जब किसी को दफनाया जाता है तो उसके कब्र पे उसकी याद के लिए जो कुछ हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? ए. इंस्क्रिप्शन, बी. ट्रांसफर्ड इपिथेट, सी. इपिटफ एंड डी. इपिग्राफ. Correct answer will be option number C. Epitaph. Question number 8. The first book that was written under the influence of Renaissance in England. ऐसी बुक, पहली बुक जो रेनेसां के प्रभाव की वजह से लिखी गई थी, वो कौन सी बुक थी? ए. यूटोपिया, यहाँ पे यूटोपिया होना चाहिए, यूटोपिया. बी. कैंटरबरी टेल्स, सी. द पावर एंड द ग्लोरी एंड डी. द टेम्पेस्ट. Correct answer will be option number A. Utopia. Utopia was the first book that was written under the influence of Renaissance, and it was written by Thomas More. Thomas More. और ये लिखी गई थी आपके 1516 में, और ये एक फिक्शनल आइसलैंड और सोसाइटी को डिपिक्ट करता है, एक नए वर्ल्ड को डिपिक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. विच मोमेंट मार्क्स एज रिफॉर्म द सोसाइटी एंड रिलीजन? ए. रेनासेंस मूवमेंट, बी. रिफॉर्मेशन मूवमेंट एंड सी. रोमांटिक मूवमेंट एंड डी. ऑल ऑफ एबव. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. रिफॉर्मेशन मूवमेंट. Question number 10. In which century there was violent clashes found between Catholic and Protestant? वो कौन सा टाइम था जब जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में क्लैश शुरू हो गया था, एक हिंसा शुरू हो गई थी? ए. इन 14th century, बी. 15th century, सी. 16th century and डी. 18th century. Correct answer will be option number C. 16th century. Question number 11. The correct term for a person of a material outlook and indifferent to culture. और ऐसा व्यक्ति जो कि मटेरियल आउटलुक का हो या जो कल्चर समाज में चलता आ रहा हो उससे अलग हट करके हो, उसकी मान्यताएं हो, उसे क्या बोलेंगे? ए. फिलिस्तीन, बी. बारबेरस, सी. नेम्ड, डी. एनार्किस्ट. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. फिलिस्तीन. क्वेश्चन नंबर 12. मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग. जो मिथ आपका ग्रीक वर्ड से आता है, मिथोस से आता है, वो क्या सिग्निफाई करता है? ए. इमेजिनेशन, बी. चिल्ड्रन स्टोरीज, सी. ए स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड, डी. कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ए स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड. क्वेश्चन नंबर 13. Which actor played the title role in the first performance of many of Shakespeare's plays, including Hamlet, Othello, Richard III and King Lear? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसने शेक्सपियर के जो परफॉर्मेंस हैं, जो आपके प्ले हैं, हैमलेट, ओथेलो, रिचार्ड और किंग लियर, इसमें उन्होंने रोल किया है, टाइटल रोल किया है? ए. रिचार्ड रॉबिन्सन, बी. रिचार्ड बर्बेस, सी. निकोलस टूले एंड डी. एडवर्ड एलेन. Correct answer will be option number B. Richard Burbage. Richard Burbage was the person and actor that played the title role in the first performance of many Shakespeare's plays like Hamlet, Othello, Richard III and King Lear. Question number 14. The lunatic, the lover
and the poet are of imagination all compact. These words of Shakespeare are taken from. ये जो आपके वर्ड्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ए लव्स लेबर लॉस्ट, बी हेमलेट, सी हेनरी फोर्थ एंड डी मिडसमर नाइट ड्रीम। तो ये जो लाइन है आपकी कहाँ की है? ये मिडसमर नाइट ड्रीम की है। क्वेश्चन नंबर 15, द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसिलेंसो आर टेकन फ्रॉम। ये जो टाइटल है आपकी एल एलिग्रो एंड इल पेंसिलेंसो की, ये कहाँ से ली गई है? ए म्यूजिकोलॉजी, बी फिलोसफी एंड सी सोशियोलॉजी एंड डी माइथोलॉजी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए म्यूजिकोलॉजी। Question number 16. Which poems of Milton are full of Elizabethan spirit, joyous in nature? A. Horton poems, B. Poems after getting blind, C. Poems written after coming from prison, and D. Poems written during Commonwealth period. Correct answer will be option number A, Horton poems. Question number 17. The Dark Flower by Galsworthy is A. Love drama, B. Tragic play, C. Love novel, and D. Comic play. Correct answer will be option number C. A love novel. Dark Flower is a love novel. Question number 18. Who gives Bassanio's ring to Portia? बेसोनियो का जो रिंग है वो पोर्सिया को कौन देता है? ए एंटोनियो, बी साइलॉक, सी नेरिसा एंड डी ग्रेसियानो। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ग्रेसियानो। क्वेश्चन नंबर 19. What does Lorenzo think of people who don't like music? लोरेंजो ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या सोचता है जो कि म्यूजिक को नहीं पसंद करते हैं? ए ही हैज़ नो ओपिनियन, बी दे डिजर्व क्रुएल्टीज, सी दे आर क्लेवर एंड डी दे अम्यूज हिम। करेक्ट आंसर विल बी दे डिजर्व cruelty. Last question of this set. Which month is the cruelest in the Westland? वेस्टलैंड में किस महीने को सबसे क्रूएलेस्ट माना गया है? ए मई, बी अप्रैल, सी सितंबर एंड डी दिसंबर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी अप्रैल. April is the month which is cruelest according to the Westland. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 28 कंप्लीट हुआ और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 29 में. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग.